بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال. مریم صاحبہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ، انہوں نے عمران خان صاحب کو سیدھا قتل کی ایک دھمکی دی اور انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ ختم ہونے والا ہے اور بہت جلد یہ فتنہ ختم کر دیا جائے گا. ان کے خلاف خیبر پختونخوا میں بھی FIR درج کرنے کے لیے درخواست آ چکی اور SHO صاحب نے وہ درخواست IG صاحب کو بھیج دی. اور دوسری جانب پنجاب میں تونسا شریف میں بھی مریم صاحبہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دے دی گئی، لیکن ابھی تک مقدمہ درج ہوا نہیں. مریم صاحبہ کے یہ الفاظ جو ہیں، اور خاص طور پہ یہ دھمکی نہیں بلکہ پیشن گوئی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اس سے کافی الارمنگ سچویشن ہے. ذرا تھوڑا سا میرے سامنے ایک کیس سامنے آ گیا ہے، وہ ضرور میں بتانا چاہوں گا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری JIT کے خلاف سماعت کے لیے 7 رکنی نیا بینچ لاہور ہائی کورٹ کا تشکیل پا چکا ہے. آج سے 10 سال پہلے چچا کی حکومت تھی. چچا صاحب تھے وزیر اعلیٰ پنجاب اور والد صاحب تھے وزیر اعظم پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان، اور ان کے دور میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جو کہ اس وقت کینیڈا سے آ رہے تھے سیاسی تحریک شروع کرنے کے لیے، پہلے ان کو دھمکی دی گئی تھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو. خواجہ سعد رفیق صاحب اور دیگر رہنماؤں کی ویڈیوز موجود ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئیں پاکستان تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ دوبارہ آ نہیں سکیں گے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے اور جیسے ہی وہ آئے تو اس کے کچھ ہی دن کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا اور ماڈل ٹاؤن میں 14 بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، خواتین بھی اور مرد بھی، جو کہ محض ان کا کام صرف یہ تھا، منہاج القرآن میں وہ درود شریف پڑھتے تھے اور عبادات کرتے تھے، اس کے علاوہ اور ان کا کوئی سیاسی کام نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ماڈل ٹاؤن پہ منہاج القرآن پہ ہلہ بولا گیا، سیدھی فائرنگ کی گئی اور پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا اور 14 شہید ہو گئے. آج تک اس کو انصاف نہیں مل سکا اور اب 7 رکنی بینچ جو ہے دوبارہ سے تشکیل پایا ہے. اور آج جو بینچ بنایا گیا جی، جسٹس شہباز رضوی صاحب ہیں اور جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب ہیں، جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، جسٹس چودھری عزیز ہیں، جسٹس فاروق حیدر، جسٹس شکیل احمد، جسٹس طارق ندیم، یہ ہے. اور 1 نومبر یعنی کہ آج اس کی سماعت ہونی ہے. 7 رکنی بینچ، مقدمہ نمبر 510 ہے، 2014 کا مقدمہ ہے، آج سے 10 سال پہلے کا. لیکن ابھی تک اس کے انصاف نہیں مل سکا متاثرین کو اور مقتولین کے ورثاء کو. تو جس خاندان کے دور میں ایسے مظالم ہو چکے ہوں اور پھر ان سے کچھ بھی بعید کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ اعلان میں کل پھر عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی جی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ گئی. اس میں عمر ایوب تھے لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب تھے، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر تھے، اسد قیاسر صاحب تھے، زرتاج گل صاحبہ پارلیمانی لیڈر. لیکن کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ تقریباً 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہاں سے چلے آئے. کافی سخت گفتگو کی عمر ایوب صاحب نے بھی، شبلی فراز صاحب نے بھی، پارلیمانی لیڈر زرتاج گل صاحبہ نے بھی اور اسد قیاسر صاحب نے بھی. اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جناب یہ جو کچھ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے. ایک طرف مریم سرکار ہے اور دوسری طرف راولپنڈی سرکار ہے اور ایجنسیوں کا ہولڈ ہے اور ایجنسیوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اور ایک طرف یہ سچویشن تھی، دوسری طرف اور ان سے کہا گیا کہ آپ بیان حلفی دیں کہ آپ کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے عمران خان صاحب سے. اب ذرا سیاسی گفتگو کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت صاحب کی درخواست پہ پیٹیشن پہ فیصلہ دیا ہے اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر بلینکٹ پابندی آئین کی ایسوسی ایشن اور اظہار رائے کی آزادی کی شقوں سے متصادم ہے. یعنی آپ قیدیوں کی جو گفتگو میں سیاسی گفتگو پر پابندی عائد نہیں کر سکتے، یہ خلاف آئین ہے اور انہیں بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا دیگر شہریوں کو، اور انہیں بھی سیاسی جماعت بنانے کی بھی اجازت ہے. اور عمران خان صاحب کے
सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की यही शिक बताई गई थी और उसके बाद उस शिक को खिलाफ आइन करार दे दिया गया है और ये शिक थी जी 265 और इसे कलअदम करार देने की दरखास्त की गई थी, लिहाजा उस शिक को कलअदम करार दे दिया गया है और इस बात का इकरार किया गया है कि जेल में इमरान खान साहब यानी कि कोई भी शख्स, इमरान खान साहब नहीं, कोई भी शख्स उस पर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। तो कल जेल हुकाम ने यह कहा कि पहले आप लिख कर दें कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो बाहर सियासी पीटीआई के रहनुमाओं ने ऐसा करने से इनकार किया और मुलाकात नहीं होने दी गई। ये तो है जनाब एक तरफ। दूसरी जानिब ये जो हमारी रजीम है ये मुकम्मल तौर पे हर तरफ से फंसी हुई है और कहीं से भी कोई इनको रिलीफ नहीं मिल रहा। जो बड़ी खबर चल रही है, नवाज शरीफ साहब आपको मालूम है कि अमेरिका में हैं और शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब और कतर से होके वापस पहुंचे हैं। तो मामला क्या है? मामला सिंपल इतना ही है कि ये अपने इख्तिदार को बचाने के लिए और वहां से सिफारिश के लिए और अपना दस्ते शफकत जारी और सारी रखने के लिए ये वहां पे पहुंचे हैं। अब ये आपको मालूम है कि शरीफ खानदान के सऊदी हुकाम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये आम तासुर है कि वो इनको सपोर्ट करते हैं। दूसरी जानिब यूएई जब ये देखा, क्योंकि ये खबरें जब फैली कि दोनों भाई निकले हैं और एक्सटेंशन के लिए और उसके बाद जरदारी साहब ने रुख इख्तियार किया है यूएई का। जरदारी साहब का भी ये दौरा खालिसन इसी नौयत का था और वो भी इसलिए गए हैं कि जनाब हम पे जरा अपना वजन बढ़ाएं हमारे लिए, क्योंकि उधर सऊदी अरब जो है वो बढ़ा रहा है, शरीफ खानदान को जरा प्रमोट कर रहा है, तो हम आपके हैं। और ये बात हकीकत है क्योंकि जो पहला एनआरओ हुआ था परवेज मुशर्रफ के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ परवेज मुशर्रफ साहब का जो एनआरओ हुआ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, तो वो सारा उसमें यूएई में हुआ था और यूएई की गवर्नमेंट भी उसमें काफी उसने रोल प्ले किया था। तो अब भी यही चल रहा है कि पीपल्स पार्टी यूएई की तरफ देख रही है और शहबाज शरीफ साहब मोहम्मद बिन सलमान की तरफ देख रहे हैं और नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए हुए हैं। तो ये तो है हकीकत हाल जो कि इस वक्त जारी सारी है और तगदो चल रहा है। जरदारी साहब जो हैं गए हैं जी दुबई और वहां पे जो सरकारी तौर पे बताया गया है कि उनका पांव फिसला है जहाज से उतरते वक्त और उनका पांव फ्रैक्चर हो गया है, उस पे प्लस्तर वस्तर चढ़ा दिया गया है और उनको तकरीबन 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है। तो 4 हफ्ते वो अब बेड पे आराम करेंगे। अब उन्होंने ये 4 हफ्ते यूएई में गुजारने हैं या फिर वापस आना है, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं, लेकिन ज्यादा इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो फिल वक्त 4 हफ्ते यूएई में ही गुजारना चाह रहे हैं। आखिर इन 4 हफ्तों का टाइमिंग जरा थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड कुछ और नजर आ रहा है और वो है कि अगले 4 हफ्ते ही काफी इंपॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं। नंबर 1 ये कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या संदेशा लेके आते हैं या वहीं से कोई पैगाम भेजते हैं और शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब ने क्या गारंटी दी। तो जरदारी साहब ये सारे खेल खेलेंगे यूएई में बैठ के, ये तो एक सादा सी बात है। लेकिन दूसरी जानिब अगले 4 हफ्ते इंपॉर्टेंट इसलिए भी करार दिए जा रहे हैं कि अमेरिकन इलेक्शन है नवंबर में, 4-5 दिन रह गए हैं जी और इलेक्शन है और उस इलेक्शन के नताइज को भी देखा जाएगा कि इलेक्शन के नताइज क्या आते हैं, क्योंकि उन इलेक्शन के नताइज का पाकिस्तान की सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तब भी, और दूसरी जानिब प्रेसिडेंट बाइडन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके अरकान पार्लिमान का कि जनाब जो आपने कज़िया शुरू किया जिसकी वजह से आपकी हठधर्मी या जिद या साइफर की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और पाकिस्तानी अवाम में अमेरिका का जो परसेप्शन है वो ख़राब तर हो गया है और जाने से पहले आप इसको ठीक करके जाएं। और बाइडन इंतज़ामिया पे भी, बाइडन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस बात का इम्कान मौजूद है और इस बात का ये तासर भी मौजूद है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमारी मिलिट्री लीडरशिप शदीद तरीन दबाव का शिकार है, अंडर प्रेशर है और समझ नहीं आ रही कि वो इस कज़िये से कैसे निकलें। तो एक बात तो ये है, इसलिए
जरदारी साहब भी देखेंगे, तेल और तेल की धार भी देखेंगे, जरा जोड़ तोड़ भी करेंगे यूएई में बैठ के आज़ादाना तरीके से, क्योंकि ईवान सदर में बैठ के वो इस तरीके से ओपनली नहीं कर सकते। वहाँ हमको पता है कि जासूसी का निज़ाम है और जासूसी के निज़ाम में बहुत कुछ बड़े मसाइल होते हैं, एक एक एक्टिविटी आपकी नोट हो रही होती है। तो लिहाजा जरदारी साहब जब भी इस तरह को मौका आता है तो वो यूएई चले जाते हैं और वहाँ बैठ के फिर अपनी सरगर्मियाँ जारी सारी रखते हैं, और वहाँ पे जासूसी का निज़ाम भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिस मुल्क में होते हैं वहाँ का अपना जासूसी का निज़ाम मौजूद होता है, तो उनकी इनको फिक्र नहीं होती। वो कहते हैं कि हमने अपने पाकिस्तान के जासूसी इदारों से बचना है, बाहर वालों की खैर है। तो एक तो ये चल रहा है। दूसरा, 26वीं तरमीम के फौरी बाद एक प्रेशर आ रहा है कि फौरी तौर पे 27वीं तरमीम की कर दी जाए और 27वीं तरमीम जल्दी जल्दी मंजूर करें, और जो खामियां रह गई हैं और उन खामियों का जो 26वीं तरमीम का फायदा जो है वो भी मुस्लिम लीग नवाज ज्यादा से ज्यादा उठाना चाह रही है। और जो जुडिशल कमीशन जो पार्लिमान और जजेस का मुश्तरका तौर पे जो जजेस की रिक्रूटमेंट करेगा, जिसने आईनी बेंच की तश्कील करना है, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो वोट नंबर्स में पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी 2 वोट मांग रही है और वो उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि नून लीग का लॉ मिनिस्टर भी नून लीग का, अटॉर्नी जनरल भी नून लीग का, तो हमारे भी बराबर वोट होने चाहिए और हमारे भी दोनों अरकान हमारे होने चाहिए हुकूमती बेंचों पे। तो मुस्लिम लीग नवाज जाहिर है ये बात नहीं मान रही और उनको सिर्फ एक मेंबर देना चाह रही है, सिर्फ एक, और बाकी वो खुद। और इस तरीके से कमेटी में 3-1 की रेशो हो जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज के होंगे 3 वोट और पीपल्स पार्टी का होगा 1 वोट। इस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में अभी तक कुछ नहीं आया, और ना ही उनके जो नॉमिनी थे वो चीफ जस्टिस बन सके, और ना ही अभी तक उनको आगे फिर जजेस की रिक्रूटमेंट होनी है, उसमें भी पीपल्स पार्टी को वो वाला उस तरीके से असरअंदाज नहीं हो सकेगी। तो ये भी है। लिहाजा जरदारी साहब जो हैं वो 4 हफ्ते बाहर क़याम करना चाह रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि ये सारे का सारा ऊंट किस करवट बैठता है। और अगेन एक और खबर भी है जी, और वो है लाहौर में, पंजाब में, लाहौर माल रोड में गवर्नर हाउस के सामने बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीर लगी हुई थी, बैनर लगे हुए थे और बड़े बड़े बैनर, उसमें तस्वीरें थी। वो तस्वीर जो हैं वो उतरवा दी गई हैं और वो बैनर भी उतरवा दिए गए हैं, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स जिसे कहते हैं जी, उनको उतरवा दिया गया है। और इसलिए उतरवाया गया है कि माल रोड और अतराफ से पीपल्स पार्टी के लगाए गए परचम बैनर्स साथ उतार दिए गए और उसमें तस्वीर भी थी। और ये 26वीं आईनी तरामीम की खुशी मनाने पर नून लीग को उन्होंने कहा जी ये तकलीफ समझ से बालातर है हमारी। हसन मुर्तजा पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, रुकने असम्बली हैं, उन्होंने कहा जी हुकूमत पार्लिमानी बालादस्ती के खिलाफ इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाइयां बंद कराए, और आज 26वीं आईनी तरमीम के जश्न को सबोताज करने की साजिश की जा रही है और मुतल्लिका इदारों को ऐसी कार्रवाइयों से न रोका गया तो कारकुन मुश्तइल हो सकते हैं। ये वो बात है जी कि पीपल्स पार्टी को किसी भी सूरत में शरीफ खानदान, खा वो छोटा है या बड़ा है, दोनों के दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं। बाकी अंदर खाने जितनी मर्ज़ी इख्तलाफ हों, लेकिन इस बात पे सारे मुत्तफिक हैं कि हमने पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो को, जरदारी साहब को पंजाब में सियासत नहीं करने देनी और यहाँ पे उनको कदम नहीं जमाने देना। तो ये हर तरफ से यही लड़ाई ही लड़ाई चल रही है। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।